हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। दृष्टि का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, घटना चक्र वाले का। तो यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसके पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे और घटना चक्र, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को हम लोग खत्म कर लिया। तो आप लोग वहाँ आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे ही, ठीक है। बजट का 1 ही घंटे सारा मैं निपटा दिया हूँ, बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, आराम से ध्यान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट का, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स और पढ़ते हैं बर्ड्स आई व्यू ऑन द रिलेटेड डेवलपमेंट रिलेटेड टू डिफेंस, स्पेस एंड मेडिसिन में। देखिए रिसेंट एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT का 01, ठीक है। IADT 01 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या दे रहा है इसमें, देखना क्या दे रहा है। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, The Indian Space Research Organization (ISRO) successfully conducted the first integrated airdrop test (IADT) under the Gaganyaan program and the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. This test demonstrated the end-to-end performance validation objective of the parachute-based deceleration system for the Gaganyaan mission's crew module. Yeah, the purpose of this test was to prove the reliability of the parachute-based deceleration system in the crew module so that a safe landing in the sea could be ensured in the final stage. मतलब जो इस लैंड करेंगे तो सी में ही लैंड करेंगे ना, जैसे कोई खतरा ना पहुंचे, तो वहाँ पे इसका टेस्ट चल रहा था। For the qualification of operational and technical parameters of the system, simulated crew module weighted about 4.8 tons, equipped with the complete parachute system, was dropped from an altitude of about 3 kilometers using an Indian Air Force Chinook helicopter. In the first integrated airdrop test, IADT-01 of the Gaganyaan mission, 4 types of parachutes were deployed according to the mission layout. देखिए कौन कौन से एपेक्स, कवर, सेपरेशन, ड्रॉट पैरासूट एंड पायलट पैरासूट एंड मेन सूट, ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन पहले देख लेना। ड्यूरिंग दिस टेस्ट टोटल ऑफ 10 पैरासूट से फालतू चीज़ दिखा रहा है। इससे पैरासूट हुआ डिप्लॉयड नहीं पूछेगा यार, एग्जाम में नहीं पूछेगा, मुझे जितना पता है, ठीक है। The dropped parachutes were released by the para-based parachutes thermometer SDSR solid state, ये सब फालतू चीज़ दिखा रहा है। Simulated after splashdown, simulated crew module was successfully recovered and brought to Chennai port by the Indian Navy ship INS Anvais. Yeah. It is notable that extensive computational modeling of the crew module dynamics was carried out with the helicopter for better understanding. The actual test was conducted with dummy hardware after obtaining approval from the Test Authorization Board (TAB). It should be noted that the parachute system used in this test was developed by ADRD, Agra, after DRDO, along with the ISRO, DRDO, the Indian Air Force, the Indian Navy, and the Indian Coast Guard collaborated with crucial test. First static test of the Kalam. 1200. India achieved a major success in the field of the space when on 8th August, private space company MS Skyroot Aerospace Limited of Hyderabad successfully conducted the first static test of the Kalam. बस थोड़ा याद रखना कौन किया था। स्काईरूट प्राइवेट स्पेस कंपनी है कौन, अभी पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा कौन कौन से प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसको याद रखना ना, एरोस्पेस स्काईरूट प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, हैदराबाद की है। और ये इसने टेस्ट किया था कलाम 1200 मोटर की, ठीक है। वही फर्स्ट स्टेज है विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल है। की पॉइंट्स क्या था, फर्स्ट स्टैटिक टेस्ट ऑफ द कलाम 1200 was conducted at 9 AM in the static test facility located at the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota of the Indian Space Research Organization (ISRO). The achievement is a major milestone for the development and system of the Vikram first launch vehicle. The Kalam 1200 motor is a 11-meter long, solid propellant based on the design input, based on the design input. This longest monolithic motor was manufactured at the solid propellant plant Sriharikota. The ISRO team provided the design of the test stand used for this motor static test, and the performance of the test bed and associated test system was recorded. मतलब फालतू चीज़ इसमें आई डोंट थिंक दे विल आस्क, ठीक है। पढ़ेंगे ज़्यादा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सन प्रोपोल्सन कुछ याद होने वाला है नहीं इसमें। अब देखना यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च आता है निसार मतलब NI मतलब नासा, इसार मतलब इसरो अपर्चर रडार, ठीक है। IS से इसरो, यहाँ से नासा, AR से अपर्चर रडार बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन पूछ चुका IS में भी, PCS में भी आज का एग्जाम में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद देख लेना।
सक्सेसफुली लॉन्च ऑफ द निसार सैटेलाइट। द निसार, यहाँ पे देखना निसार फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म में पूछ लिया था। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट इज ए लैंडमार्क इन अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड इंडिया यूएस स्पेस कोलैबोरेशन, ठीक है। India US Sky jointly developed by ISRO and NASA in the first mission is to use dual band SAR technology for high resolution all-weather day and night imaging launched in 30 July. It stands among the world's most powerful and highest data generating Earth observation satellite है ये जो लॉन्च हुई ना, ये क्या है, क्या है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन प्लान, ठीक है। अर्थ को ऑब्जर्व करेगी कि क्या यहाँ पे ओशियन कितना है, ड्रॉट कहाँ पे है, कहाँ ग्रीनरी है, वो सब देखते हैं लोग, ठीक है। की फैक्ट्स क्या है, निसार देखना, निसार क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है। सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 30 July 2025 फ्रॉम द सेकंड लॉन्च पैड ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा बाय द GSLV F-16 रॉकेट। इट इज नोटवर्दी दैट निसार इज द फर्स्ट मिशन ऑफ इट्स काइंड जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडिया इसरो, ठीक है, इंडिया इसरो and American NASA aimed at conducting microwave imaging on a global scale. It is worth mentioning that this was the 18th flight of the GSLV and 12th flight with an indigenous cryogenic state. Cryogenic मतलब क्या था, जो जहाँ पे देखिए लिक्विड हाइड्रोजन रहेगा और लिक्विड ऑक्सीजन रहेगा ना अपर लेयर में, पहले सॉलिड रहेगा उसमें जो व्हीकल रहेगा ना GSLV, उसमें देखिए पहले क्या रहेगा, जो LMV बोलते हैं उसको, लॉन्च मोटर व्हीकल बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तीसरे स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन लगा देते हैं, पहले स्टेज में स्टॉक सॉलिड रहता है, दूसरे में लिक्विड रहता है, तीसरे पे GSLV में इसको क्रायोजेनिक लगा देते हैं। क्रायोजेनिक मतलब क्या होता है कि वो एकदम कोल्ड रीजन में करके, ठीक है, हाई प्रेशर एंड कोल्ड टेम्परेचर में इसको सॉलिड मतलब लिक्विड कंडीशन में हाइड्रोजन रहेगा, लिक्विड कंडीशन में ऑक्सीजन लेके जाता है इसमें, ठीक है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन में कोल्ड करके कोल्ड टेम्परेचर में हाई प्रेशर में उसको लिक्विड कंडीशन में करके तो उसमें फ्यूल के रूप में काम करते हैं ये लोग, ठीक है। और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेशन ग्रुप में काम करता है, और ये हाइड्रोजन जो फ्यूल ग्रुप में काम करता है, ठीक है, इसमें दिया था। तो यहाँ पे देखना अमेरिका जो हो गया, इसमें यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन का यूज हुआ है, ठीक है। टेक्निकली द निसार सैटेलाइट इज बेस्ड ऑन द ड्यूल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार सार टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग एल बैंड किसके द्वारा दिया जाएगा, नासा के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। एल बैंड होगा नासा के द्वारा दिया जाएगा। एस बैंड, एल मतलब समझ लो हो गया, लो मतलब नासा में ज़्यादा फेमस है लो ना, और एस बैंड मतलब इसरो का, ठीक है। यस से इसरो में यस भी आ रहा था, इसरो हो जाएगा। बैंड है जो वहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ में काम करेंगे। इट्स अ ड्यूल सार रडार सिस्टम, एल बैंड एंड एस बैंड मेक्स इट स्पेशल इनेबलिंग इट टू मॉनिटर द minute and deepest structure of the Earth day and night in all weather conditions. NISAR has a 12-meter diameter unfurlable reflector antenna deployed via 9-meter boom. It uses advanced sweep SAR technology, providing high resolution and wide swath imagery. ठीक है, it is capable of acquiring fully polarimetric and interferometric data. NISAR will be placed in a sun-synchronous polar orbit. किसमें रहेगा, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इतना मास रहेगा। इट विल इमेज द अर्थ लैंड एंड आइस कवर्ड सरफेस, क्या करेगा ये, इट विल इमेज द अर्थ लैंड एंड आइस कवर्ड सरफेस, आइलैंड, सी आइस एंड सेलेक्टेड ओशियन एवरी 12 डेज, ठीक है, सेलेक्टेड ओशियन एवरी 12 डेज मैप करेगा, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड कॉस्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड कॉस्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड कॉस्ट की बात कर रहा है। निसार वाज जॉइंटली डिजाइन एंड बिल्ट बाय नासा, ठीक है, निसार वाज जॉइंटली, ठीक है, डिजाइन एंड बिल्ट बाय द नासा, ठीक है, निसार वाज जॉइंटली डिजाइन एंड बिल्ट बाय नासा। इसरो नासा कंट्रीब्यूटेड द एल बैंड सार, तो नासा जो है कंट्रीब्यूट किया था एल बैंड सार को, ठीक है। लार्ज डिप्लॉयबल, ठीक है, लार्ज डिप्लॉयबल एंटीना, GPS एंड डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसरो प्रोवाइड द डैश बैंड सार spacecraft bus mission operation and launch of service. The total project cost is about $15 billion है, with India share है around $90 million, ठीक है, हो गया, ठीक है गाइस। मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है 1 बिलियन तो पता है 100 करोड़ में 1 मिलियन होता है, मतलब आपको 1000 मिलियन चाहिए, 1000 मिलियन रहेगा तब आपका 1 मिलियन होगा, तो नासा का ज़्यादा पैसा लग रहा है, कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी डिफॉर्मेशन
ऑफ लैंड एंड आइस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड ओशियन रीजन, मतलब क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है आइस पे और टेरेस्ट्रियल लैंड पे, तो उसको एनालिसिस करेंगे सर। मिशन ड्यूरेशन क्या, निशांस मिशन लाइफ इज 5 ईयर रहेगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन देख लेना, ऐसा थोड़ा पूछ सकता है तो पूछना रहेगा। मिशन ड्यूरेशन ही 5 ईयर्स रहेगा। Data will be available under the open access policy which with most standard products released within 24 to 40 hours, ठीक है। While disaster related data will be made available in real time। सिंथेटिक अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार जो रहेगा ना, सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR यानी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ये जो एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है that use the motion of radar antenna to create a virtual synthetic aperture much larger than the actual antenna, much larger than the actual antenna. This means that a small physical antenna while moving transmits and receives signals from multiple different positions, creating a larger virtual antenna size. This process is capable of producing high resolution, ठीक है। This process is capable of producing high resolution, ठीक है, high resolution two dimensional, ठीक है। This process is capable of producing high resolution two dimensional or three dimensional image, ठीक है। This process is capable of producing high resolution टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल इमेज, ठीक है। हाई रिजोल्यूशन टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल इमेज, ठीक है। इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई रिजोल्यूशन, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल इमेज, ठीक है। वर्किंग देखना क्या है, SAR इक्विपमेंट कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट्स, ठीक है। SAR equipment continuously transmits electromagnetic waves, radar pulses which bounce off the Earth's surface and return. It receives the returning returning reflected waves, ठीक है। It receives the returning reflected waves back scatter signals with high sensitivity. While moving along its orbit path, the satellite or aircraft sends and receives signal, ठीक है, from each location multiple times. The received data is combined using special signal processing techniques, creating a large synthetic aperture allowing detailed and sharp imaging, ठीक है। This makes it possible to clearly depict the surface even in clouds, smoke or darkness of night. SAR's working method provides more detailed and accurate images capture compared to traditional stationary radar, which is important to disaster management, environmental study, agriculture and defense. अब सबसे इम्पोर्टेंट मिशन मैं बता रहा हूँ जो जहाँ से चांसेस बहुत हाई है क्वेश्चन आने की, एक्जियोम मिशन 4 की। ऐसे कोई करके क्वेश्चन पूछ देंगे ना, और डीप में पूछ सकते हैं क्योंकि हर बच्चा जानता है इसको ना, थोड़ा डीप में हो जाएंगे, मतलब सेकंड लेयर में जरूर जाएंगे, मुझे जितना पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपको इसको एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसलिए इतना बड़ा भी दिया है थोड़ा, इसको मैं एक लाइन पढ़ूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा डीप में जाएंगे जरूर, मुझे जितना पता है जरूर जाएंगे भाई, ठीक है। सेकंड लेयर में जरूर जाएंगे, लोग थर्ड डीप में जाएंगे, तो उसको एक लाइन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखना एक्जियोम 4 मिशन, तो अभी क्या है, शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ के थे, यहाँ से गए हैं, जहाँ पोलैंड, हंगरी और इंडिया के 3 लोग गए थे, एक USA के भी गए थे, 4 लोग गए थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ देखना, और ड्रैगन जो स्पेस का ड्रैगन कैप्सूल था उसके साथ गए थे वहाँ पर। और 15 जुलाई 2025 को देखिए, 15 जुलाई 2025 विद द रिटर्न ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आफ्टर हिस्टोरिक 18th डे साइंटिफिक मिशन अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक्जियोम 4 मिशन वाज सक्सेसफुल कंप्लीटेड, ठीक है। कब वो आए थे शुभांशु शुक्ला, कब आया, 15 जुलाई को। इसमें क्यों मैं डेट बता रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट हुआ है, ये पूछने की पॉसिबिलिटी हाई है भाई, ठीक है। डेट पूछेंगे तो कोई गलती नहीं उनकी, ठीक है। एग्जाम वाले कुछ नहीं, हमको लगता है डेट नहीं पूछेंगे, लेकिन ये सब पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, एस्ट्रोनॉट शुभांशु आफ्टर हिस्टोरिक 18 डे साइंटिफिक मिशन, ठीक है, अबोर्ड है, ठीक है। शुभांशु शुक्ला वहाँ 14 दिन का मिशन था, लेकिन ठीक है, वहाँ 14 दिन का मिशन था, लेकिन 2 दिन हमको लगता है जाने में लगा, 2 दिन को आने में लग गया, ठीक है। तो इसको 14 दिन 18 हो गया, ठीक है। शुभांशु शुक्ला आफ्टर हिस्टोरिक 18 डेज scientific mission aboard the International Space Station ISS, एक्जियोम मिशन 4, ठीक है। एक्जियोम मिशन 4 was successfully completed, एक्जियोम मिशन 4 का कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। द मिशन वाज कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद नासा के थ्रू कंप्लीट किया गया है। इज एक्जियोम मिशन, इसको याद रखना, द यहाँ पे 18 डेज याद रखना है, 18 डेज के बाद आया, ठीक है। मिशन 14 दिन का था, लेकिन 18 डेज के बाद आया है। शुभांशु शुक्ला कौन गए थे, शुभांशु शुक्ला गए थे, ISS पे गए थे, वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। एक्जियोम मिशन 4 था, अभी 3 देगा, कोई 2 देगा, लेकिन इसको 4 मारना है। एक्जियोम मिशन 4 था ये, ठीक। दिस मिशन वाज कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद किसके साथ, नासा था, ठीक है। कोलैबोरेशन किसके साथ था, नासा था,
एक्जियोम स्पेस था, ईएसए था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी था एंड अदर इंटरनेशनल पार्टनर भी थे इसमें। मतलब ये प्राइवेट एजेंसी थी जो कि इनको भेजी थी पैसा लेकर, ठीक है। मतलब कोई भी जा सकता है, पैसा देकर आराम से जा सकते हैं, ठीक है ना, विद कंडीशनल, ठीक है। यहाँ पे देखना थ्रू एक्जियोम मिशन 4 X4 डे Indian astronauts once was sent to the International Space Station. In Axiom Mission 4, the SpaceX Dragon, यहाँ पे देखना, in Axiom 4 mission, the SpaceX Dragon spacecraft was launched on a Falcon 9 रॉकेट था, Falcon Falcon 9 रॉकेट था। कौन सा व्हीकल था? ड्रैगन कौन सा स्पेसक्राफ्ट था? SpaceX Dragon स्पेसक्राफ्ट था। A new crew design है, a new crew design, कौन सा क्रू डिजाइन? A new crew dragon था, कौन सा क्रू ड्रैगन था? ग्रेस C213 था क्रू ड्रैगन, कौन था? ग्रेस CO213 था, was used for this flight, named by the X4 crew, ठीक है। इट इज SpaceX फिफ्थ एंड फाइनल न्यू क्रू ड्रैगन, ठीक है। ये जो है SpaceX का, ठीक है, SpaceX का फिफ्थ एंड फाइनल न्यू क्रू ड्रैगन था, ठीक है। The launch took place from Launch Complex 39A at Kennedy Space Center, Cape Canaveral, फ्लोरिडा, USA से हुआ था, ठीक है। कहाँ से लॉन्च हुआ था? USA से लॉन्च हुआ था भाई, फ्लोरिडा, ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ था, ठीक है। याद रखना, भूलना नहीं है भाई, भूल मत जाना इसको, ठीक है, ठीक। सुभांशु शुक्ला सर्व एज द पायलट ऑफ दिस मिशन, ठीक है। एक पायलट थे यहाँ पे इसके, ये पायलट तो पहले ही थे यार, पायलट सुभांशु शुक्ला पहले ही थे, ठीक है। तो ये पायलट थे, सुभांशु शुक्ला सर्व एज द पायलट, ठीक, याद रखना। सुभांशु शुक्ला सर्व एज द पायलट ऑफ द मिशन। द अदर 3 एस्ट्रोनॉट इन द क्रू वर कौन कौन थे, इनका नाम और कहाँ थे ये भी याद रखना। मतलब ये तो पोलैंड, हंगरी और USA इंडिया थे, और इनका नाम थोड़ा याद होता है, सही है। पेग्गी विल्सन थे, ठीक है। कौन कौन थे अदर क्रू में? पेग्गी विल्सन थे, मिशन कमांडर थे, USA की थी। ये लेडी थी, इनका याद नाम रखा, एक लेडी भी गई थी, तीन मेल गए थे, 1 फीमेल गई थी। फीमेल कौन थी? USA की थी, वो पेग्गी कमांडर, मिशन कमांडर थी USA की, ठीक है। पेग्गी विल्सन गई थी, ठीक है, मिशन कमांडर थी USA की, ठीक है। एंड टीवर कप्पू हंगरी के थे, एंड स्लोज उजनास्की थे, विस्की पोलैंड के लगते थे, देखिए रशियन नेम लग रहा है, पोलैंड आप जान जाएंगे। और तिबोर काप्पू हंगरी के थे, और सुभांशु शुक्ला तो इंडिया से ही। और इसमें देखिए पेग्गी विल्सन थी जो मिशन कमांडर थी USA की थी, इनका नाम याद रखना, ठीक है। 26 जून 2025 द जियो मिशन 4 क्रू सक्सेसफुली डॉक्ड एट द, कहाँ पे डाउट हुआ था? एट द स्पेस फेसिंग थ्रू पोर्ट ऑफ द, ठीक है। द जियो मिशन 4 क्रू सक्सेसफुली डॉक्ड एट द स्पेस फेसिंग पोर्ट ऑफ द हार्मोनी मॉड्यूल, मतलब डाउट हुआ, ठीक है, हार्मोनी मॉड्यूल मतलब उसे अटैच हुआ था। दे वर वेलकम्ड अबोर्ड द ISS बाय द मेंबर ऑफ द एक्सपीडिशन 73, जो मेंबर थे वो वेलकम किए थे। कौन? एक्सपीडिशन 73 के मेंबर जो है वेलकम किए थे। It is noteworthy that the space-facing port of the Harmony module is equipped with an international docking adapter, which serves as the docking port for SpaceX Crew Dragon, Boeing Starliner, and other commercial Crew and Dragon व्हीकल। मतलब जैसे मोबाइल में चार्ज, हम जैसे मोबाइल में चार्जर हम लोग लगाते हैं ना, जैसे टाइप सी बोलते हैं, कई टाइप का चार्जर भी होता है ना, देखे होंगे। तो जैसे टाइप सी का चार्जर सिर्फ टाइप सी मोबाइल में ही लगता है, तो उसमें जो टाइप सी लगाते हैं उसको डॉकिंग एक तरह से बोल सकते हैं। तो वैसे ही जो स्पेस ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे भी इसमें चार्जर का है, ठीक है। चार्जर आप मोबाइल ले जाकर वहाँ लगा देते हैं, ठीक है, उसको डॉकिंग बोलते हैं। तो उसी के मॉडल से बना वो, ठीक है। तो वही इसमें बोल रहा है एडाप्टर, देखें यहाँ लिखा ना एडाप्टर लिखा ना, वही एडाप्टर समझ लीजिए, ठीक है। दिस पोर्ट इज वाइटल कंपोनेंट फॉर कनेक्टिंग न्यू कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट टू द ISS. Suvanshu Shukla worked in close partnership with the Axiom Mission 4 crew and Expedition 73 member, contributing to the daily rhythm of the ISS, operation, supporting joint science, maintenance and outreach efforts. ये था इसमें। He participated in the integrated crew timeline, ठीक है। यहाँ पे देखना, he participated in the integrated crew timeline, shared resources. He participated in the integrated crew timeline, shared resources on the Harmony module, and coordinated crossover activity, ठीक है, coordinated crossover activity to enhance international collaboration, ठीक है, and coordinated crossover activity to enhance international collaboration, ठीक है, and coordinated crossover activity to enhance international collaboration, ठीक है। With this mission, Suvanshu Shukla became the first Indian astronaut to visit the ISS. ये बात याद रखना, ये फर्स्ट इंडियन थे जो विजिट किए थे ISS पे, ठीक है। सुभांशु शुक्ला became the first Indian astronaut, ठीक है, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट द ISS, ठीक है।
विजिट द ISS, ठीक। अब इसके बाद कोई भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि जानते हैं हर इंसान मतलब पहले इंसान को याद रखता है, ठीक है। जैसे राकेश शर्मा गए थे फर्स्ट फर्स्ट वो स्पेस में गए थे, ISS पे नहीं गए थे, ठीक है, स्पेस में गए थे, लेकिन देखिए उनका नाम सब याद है। अब कई लोग भी जाएँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा लेकिन जो हमेशा जैसे देखिए जो नील आर्मस्ट्रांग थे चाँद पे पैर रखे थे, तो उन्हीं का नाम याद है ना। अब बताइए कितने लोगों को दूसरे का नाम याद है? किसी को याद है? मुझे खुद याद है, अभी याद नहीं आ रहा है, भूल गया यार। मतलब हमेशा पहले का नाम याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं भाई? इतना हिम्मत करके बंदा भाई पहले जा रहा है तो बड़ी बात है ना यार, कोई छोटी बात थोड़ी है ना? कुछ तो क्वालिटी होगी भाई। हाँ, कि एक ऐसा जैसे शुभांशु शुक्ला में थोड़ा वो से अपॉर्चुनिटी की बात होती है, मतलब कोई किसी और भी जा सकता था, लेकिन भाई कुछ क्वालिटी होगी। इतने पायलट में चूज़ किए गए हैं तो कुछ तो क्वालिटी होगी भाई, चूज़ किए हैं मतलब क्वालिटी है तो भाई क्या है, डिजर्व। देखिए पहले डिजर्व मतलब कोई चीज़ विश करने से पहले, डिज़ायर करने से पहले डिजर्व करिए, ठीक है। मतलब बिफोर डिजायरिंग बी डिजर्व्ड, ठीक है, ये होता है। तो इसलिए अब इनका नाम हमेशा इतिहास में रहेगा। मतलब अभी तो दुनिया शुरुआत हुई है यार, स्पेस में अभी तो शुरुआत हुई है, अभी इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है स्पेस में, याद रखना भाई। बस दिखता बड़ा हुआ नहीं अभी ज़्यादा रिसर्च, तो वहाँ पे मतलब इनका नाम याद रहेगा हमेशा, ठीक है। ISS में जब भी स्पेस में जाएंगे तो राकेश शर्मा का नाम याद रहेगा, इनका नाम जरूर याद रहेगा, ठीक है। शुभांशु शुक्ला का, लखनऊ से थे, ठीक है, जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ इसी स्टेट से, ठीक है। It should be noted that after Rakesh Sharma, who visited after Rakesh Sharma, who visited Salyut 7 space station in 1984 during the Soyuz T11, वो मतलब ये तो USA के साथ गया था, वो सोवियत क्लब से गए थे, ठीक है। जो रसिया था उसमें USSR बोलते थे, उसके साथ गए थे। राकेश शर्मा जो थे ना, वो कब गए थे? सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन से गए थे 1984 में, ड्यूरिंग सोयूज T11 मिशन के साथ गए थे, ठीक है। इनका भी याद रखना, पूछ सकते एग्जाम में, ठीक है। सोवियत के हेल्प से गए थे, वो USA के हिसाब से गए थे। शुभांशु शुक्ला USA से एंड राकेश शर्मा USSR के हेल्प से गए थे सोयूज T11 मिशन के साथ। शुभांशु शुक्ला became the second Indian to travel the Earth orbit after 41 years। बताइए अर्थ का ऑर्बिट को सेकंड इंडियन माने जाएंगे जो अर्थ का ऑर्बिट को ट्रेवल किए हैं, ठीक है, आफ्टर 41 ईयर। बताइए इतना साल लग गया बताइए दूसरे इंडियन को जाने में, तो टाइम लगता है चीज़ें। और उनके साथ इंदिरा गांधी बात की थी, जो राकेश शर्मा अभी भी शायद वो जिंदा, हाँ वो भी जिंदा है राकेश शर्मा, ठीक है। वो सदर्न कंट्री में रहते हैं, शायद केरला तमिलनाडु में रहते हैं, और अभी भी जिंदा। उनका शायद 96 या 97 ईयर हो गया उनका एज, ठीक है। ये होता है। इन जून 28, 2025 इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला हैड ए लाइव कन्वर्सेशन, एक इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला हैड ए लाइव कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम द ISS। मतलब लाइव कन्वर्सेशन किए थे किनके साथ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, वहाँ से कनेक्ट किए थे, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ना, तो हो सकता है आराम से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड प्राइड इन सीइंग द इंडियन फ्लैग इन स्पेस, ठीक है। और प्राउड किए थे वहाँ पे जब देखे थे इंडिया का फ्लैग इन स्पेस, एंड अप्रिशिएटेड शुभांशु शुक्ला कंट्रीब्यूशन टू द एक्जियो मिशन, ठीक है। उन्होंने अप्रिशिएट किया शुभांशु शुक्ला को जो कंट्रीब्यूशन टू द एक्जियो मिशन, ठीक है। दिस इंटरेक्शन वाज ब्रॉडकास्ट अक्रॉस द नेशन। ये जो इंटरेक्शन था ब्रॉडकास्ट किया गया था, लाइव किया गया था टू द नेशन एंड बिकेम हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडिया स्पेस डिप्लोमेसी। जैसे देखते हो इंदिरा गांधी से बात किए थे, किसके से? राकेश शर्मा से बात की थी, और इंदिरा गांधी ने शायद उनसे बात किया था यार, कल्पना चावला से शायद इंदिरा गांधी बात की थी। आई एम नॉट श्योर बट शी सेड समथिंग अबाउट इंडिया, लाइक कल्पना चावला इंडिया ओरिजिन से थी ना, तो भी शायद इंडिया के बारे में कुछ कही थी, ठीक है। लेकिन राकेश शर्मा से तो बात की थी, मुझे जितना पता है, ये हिस्टोरिक मोमेंट एक माना जाता है, ठीक है। अब देखना इंडिया का हिस्टोरिक मोमेंट था, इंडिया की डिप्लोमेसी का, तो याद रखना। On July 33, 2024, शुभांशु शुक्ला interacted with video, ठीक है। On July 3, 2025, शुभांशु शुक्ला interacted via video link with school students from Thiruvananthapuram and Lucknow, answering questions about becoming an astronaut and life on the ISS, ठीक है। स्टूडेंट के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया था स्पेस में जाकर। On July 4, 2025, the first HAM radio session was conducted, ठीक है। The first HAM radio session was conducted with students and engineers at the URSC Bangalore, where Shukla shared his experience of daily life in space and his experience of daily life in space and microgravity research. On July 8, 2025, the second HAM radio session was conducted by NESAC Meghalaya, where students from 7 schools of the Northeast इंडिया इंटरेक्टिव डायरेक्टली विद शुक्ला, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट है ना, वो इंटरेक्ट किए थे डायरेक्टली विद शुक्ला से, ठीक है। आज जुलाई 6, 2025 शुभांशु शुक्ला हेल्ड अ टेली कॉन्फ्रेंस विद इसरो चेयरमैन। मतलब वहाँ पे एक मोमेंट यार, एक सेकंड इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उनके लिए एक सेकंड इंपॉर्टेंट था वहाँ पे,
ठीक है, मतलब बहुत लगभग 500 करोड़ लग गया था वहाँ पे, ठीक है, भेजने में उनको। तो सोचिए कितना मतलब हर टाइम बिजी रहते थे वो, ठीक है। In July 6, 2024, सुभाष शुक्ला held a daily conference with ISRO chairman, ठीक है, ISRO chairman से भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी। He shared the progress and preliminary observation of Indian scientific payloads. On July 13, 2015, a formal farewell ceremony was held aboard the ISS for the crew. During the ceremony, members of the Expedition 73 and mission control teams expressed gratitude for the collaborative effort of the Axiom 4 crew. A commemorative mission patch exchange took a commemorative mission patch, ये exchange took place, ठीक है। एंड फाइनल फोटो वर टेकन इन द हारमोनी मॉड्यूल में एक फाइनल फोटो लिया गया सबके साथ। सब्सिक्वेंटली द क्रू कंप्लीटेड द हैच क्लोजर एंड इंग्रेस इनटू द ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में फिर वो आ गया, ये एयरक्राफ्ट का नाम याद रखना, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था। अभी पूछा था कि जो सुनीता विलियम्स आई थी ना, वो किस एयरक्राफ्ट से आए थे वापस 9 मंथ के बाद, वही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था, ठीक है। इन जुलाई 14, 2025 SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ये SpaceX ने भेजा था। SpaceX प्राइवेट एजेंसी है ना, याद रखना, नासा तो गवर्नमेंट है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली अनडॉक्ड फ्रॉम द ISS। The undocking process was carried out by the NASA and the Axiom Space Controller in coordination with the SpaceX MCCX in California. During this process, the spacecraft orbited Earth for approximately 22 hours 30 minutes ऑर्बिट किया था। आज जुलाई 15, ठीक है, मतलब वही, मतलब 2 दिन मतलब आने जाने में लगा, ठीक है, 2 दिन आने जाने में लगा था, मतलब 2 दिन आने 2 दिन जाने में, मतलब 4 दिन हो गए, 14 दिन वहाँ रुके थे और 14 डेज रुके थे तो 18 दिन हो गया, ठीक है। On July 15, 2025, the Dragon capsule safely splashed down in the Pacific off the coast of the California। यहाँ देखना कहाँ भी गिरे थे, मतलब छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी बहुत फेमस हुआ ना, इसलिए पूछ सकता है लोग। ड्रैगन कैप्सूल सेफली splashed down in the Pacific Ocean of the coast of California। मतलब जो वेस्टर्न ऑफ अमेरिका है ना, तो वहाँ कैलिफोर्निया वेस्टर्न कोस्ट में, तो वहीं पे पैसिफिक ओशियन पे ये स्प्लैश डाउन थी, मतलब वहीं पे आके गिरी थी, ठीक है। अच्छा गिरी थी भाई, लेकिन यार SpaceX ना एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है, मतलब आप जैसे यहाँ से कोई सैटेलाइट भेजती है, ठीक है, किसी व्हीकल्स में, फिर वापस आती है, वो वापस आके गिरती नहीं है, ठीक है, गिरती नहीं से ये लोग गिरा देते हैं ना वहाँ कहीं, वहाँ पे ओशन में गिरती नहीं, वो आती है डायरेक्टली, फिर वहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखेंगे बहुत फेमस हुआ था टेक्नोलॉजी, फिर जाके सेफली यार वहाँ पे फिर लॉन्च पैड पे फिर वहाँ फिर आ जाती है, फिर तैयार हो जाती है दूसरे लॉन्च के लिए। सोचिए कितना टेक्नोलॉजी, मतलब लोग, मतलब इलॉन मस्क ने खुद बोला था कि मैंने इसमें कई थाउजेंड्स ऑफ एनालिसिस हुआ था इसमें, मतलब बहुत सारा रिसर्च हुआ था, मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, मतलब जाएगी फिर वापस ही आ जाएगी आराम से, ठीक है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, डेवलप करना चाहिए। कितना पैसा लगा होगा, मतलब पैसा लगा फिर भी यार नासा से भी आगे निकल गया SpaceX ना, नासा से भी अच्छा काम कर रहा है भाई इस समय। देखिए इसमें नासा, इसमें SpaceX ही था भाई, नासा भी था, SpaceX भी इसमें था। क्या बोला इसमें, देखिए इधर SpaceX रिकवरी टीम promptly retrieved the capsule and all astronauts including Suman Shukla were brought out safely आ गए। The mission was completed with a successful deorbit, ठीक है, the mission was successfully, ठीक है, deorbit and normal vehicle performance, ठीक है, and normal vehicle performance। It is noteworthy that, ठीक है, it is noteworthy that in 2024 the American company Axiom Space, ठीक है, अमेरिकी कंपनी Axiom Space, ठीक है, signed a historic space flight agreement SFA with the Indian Space Research Organization। या मतलब स्पेस जो है Axiom कंपनी है ना, इसरो के साथ, ठीक है, इसरो के साथ ये समझौता हुआ था, इससे मतलब एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट किए थे इसरो के साथ। Axiom मिशन 4 देखना है, Axiom मिशन 4 इसरो रिसर्च एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, इसरो ने क्या क्या किया था। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वंस फ्लाई इन कोऑर्डिनेशन विद द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर सक्सेसफुली कैरिड आउट 7 शॉर्टलिस्टेड माइक्रोग्रेविटी रिसर्च एक्सपेरिमेंट। मतलब इन्होंने कितना एक्सपेरिमेंट किया था सुभाष शुक्ला ने, 7 शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, 7 शॉर्टलिस्टेड माइक्रोग्रेविटी रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया था अबोर्ड द ISS अंडर द Axiom 4। These experiments were designed by the Indian principal investigators from the various national R&D laboratory and academic institutions, ठीक है, ठीक। Effect of the microgravity radiation on food microalgae inside the ISS। इफेक्ट ऑफ द माइक्रोग्रेविटी कौन कौन सा, इसमें 7 थे, देखिए 3 3 6 एक साथ, मतलब 7 रिसर्च किया था ना, वही भी क्या क्या किए थे दिखाई, बताइए, पूछ सकता है भाई एग्जाम में, पूछ सकते हैं।
इफेक्ट ऑफ द माइक्रोग्रेविटी, ठीक है, 100% कोई नहीं कर सकता, बस इसमें पॉसिबिलिटी लगाई जाती है भाई। एग्जाम में कोई भी टीचर कितना भी बड़ा मान रहा है ना भाई, 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखोगे एग्जाम में, जब एग्जाम आता है तो लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं कि यह है हुआ है, ठीक है। तो ये रियलिटी है कि मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपको इफर्ट लगाना, टीचर तो कितना इफर्ट लगाया यार, वो तो अपनी तरफ से बता देता अपना एक्सपीरियंस, जब आप करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। इसमें आप पीवाईक्यू पढ़े खुद नहीं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। टीचर तो क्या करता है, टीचर वही पीवाईक्यू पढ़ के और सिलेबस देख के करता है एनालिसिस प्रिडिक्शन, और क्या करेंगे, ठीक ठीक। तो इतना मतलब कोई इसमें डायरेक्ट आसान होने की बात नहीं, आराम से करिए इसको, देखिए। अबाउट द आईएसएस अंडर एग्जाम 4, देखिए these experiments were designed by the Indian police। यहाँ तक कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे। इफेक्ट ऑफ द माइक्रोग्रेविटी रेडिएशन ऑन फूड माइक्रोएलगी इनसाइड द ISS। जर्मिनेशन ऑफ द सलाद सीड्स, जर्मिनेशन किया था सलाद सीड्स का इन स्पेस इंपॉर्टेंट फॉर क्यू न्यूट्रिशन, स्टडी ऑफ सर्वाइवल, रिवाइवल, रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसक्रिप्टोन ऑफ द tardigrade paramicrobiotic species BLR strain space। Effect of the metabolic supplements, effect of metabolic supplements on muscle, effect of metabolic supplements, ठीक है, on muscles, regeneration under microgravity, analysis of human interaction with electronic displays, ठीक है, analysis of the human interaction with electronic displays, ये microgravity impact on eyes, और eyes पे क्या impact पड़ेगा, तो माइक्रो मतलब बहुत कम ग्रेविटी होती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम होती है, तो उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखते होंगे उसकी आईएसएस के अंदर भी लोग उड़ते हुए जाते हैं, ठीक है, चलते हुए नहीं जाते हैं, उड़ते हुए जाते हैं, ठीक है, ठीक। इन माइक्रोग्रेविटी इम्पेयर आइज, कंपैरेटिव ग्रोथ, कंपैरेटिव ग्रोथ एंड प्रोटियोमिक्स, ठीक है, कंपैरेटिव ग्रोथ एंड प्रोटियोमिक्स रिस्पॉन्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, कंपैरेटिव ग्रोथ एंड प्रोटियो रिस्पॉन्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया ऑन यूरिया, ठीक है, ऑन यूरिया एंड नाइट्रेट, ठीक है, कंपैरेटिव ग्रोथ एंड प्रोटियोमिक्स रिस्पॉन्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया ऑन यूरिया एंड नाइट्रेट अंडर माइक्रोग्रेविटी। इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन सीड ग्रोथ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन सीड ग्रोथ एंड यील्ड पैरामीटर्स इन फूड क्रॉप, ठीक है, एंड यील्ड पैरामीटर्स इन फूड क्रॉप। मतलब फूड पे मैक्सिमम फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाने पर तो इंसान को जिंदा रहना चाहिए ना यार, मेन चीज़ ये होती है। अब हम लोग देखिए इसमें ज़्यादा टाइम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हाई है भाई। इस बार तैयार रहना, ठीक है, जंग लड़ने के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसी में से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से बाहर आएगा तो समझिए सबके लिए टफ होगा, इस मैक्सिमम यही पढ़ के जाते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना भाई, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, और रिवाइज कर लेना एक बार और इसको, ठीक, तब याद रहेगा, तो भूल जाएंगे आप लोग। अब देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, PSLV 661 EOS 09 मिशन ऑन में, ये इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV 61 मिशन फेल ड्यू टू अ ग्लिच इन द रॉकेट थर्ड स्टेज। रॉकेट थर्ड स्टेज क्या होता है, अच्छा PSLV है ना, PSLV में तो 4 स्टेज होते हैं, ठीक है, कौन कौन होते हैं, पहले सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, ठीक है। मिशन ओवरव्यू क्या था, इंडिया वाज सेट टू अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद 101st मिशन ऑफ इट्स स्पेस प्रोग्राम। और तो 101st थोड़ा फेल हो गया था, कोई बात नहीं, फेल होना जरूरी है, एफर्ट न लगाना सबसे गलत बात है, फेल होना कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है एक तरह से, ठीक है। आप एफर्ट लगाइए तो फेल हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ट्राई कीजिए, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ में। जैसे देखिए चंद्रयान जब 2 फेल हुआ था तो हार नहीं माने, आखिर गए ना, फिर तीसरे में सफल हुए ना, सक्सेस हुए यार, अच्छी बहुत बड़ी सफलता मिली इसके बाद तीसरे में, लेकिन ना बहुत बड़ी मिले थे, तो दुनिया नाम हो गया था इंडिया का। वहाँ से क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी आया था मेंस में। मिशन ओवरव्यू देखिए, इंडिया वाज सेट टू अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद द 101st मिशन ऑफ इट्स स्पेस प्रोग्राम ऑन में, ठीक है। इसरो लॉन्च्ड EOS 09 अबोर्ड द PSLV 661 फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर निसार, ठीक है। बस यही जाने कि इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था 661 फेल हो गया, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। The mission was intended to place the Earth observation satellite into a sun. The mission was intended to place the Earth observation satellite into a sun synchronous polar orbiter. ये SSPO में रखना था। How a mission failed to as PSLV 661 rocket developed a snag into its third stage. Satellite EOS 09. EOS 09 is a remote sensing satellite developed to deliver consistent and dependable Earth observation data for a wide range of operational applications across multiple sectors. Yeah. इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस, ठीक है, 3I एटलस, इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस या रेयर इंटरस्टेलर कॉमेट डिस्कवर्ड ऑन बाय द नासा फंडेड
एटलस एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल, ठीक है, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम टेलीस्कोप इन चिली, ठीक है, टेलीस्कोप इन चिली. It is only the third known object. It is only the third known object to come from outside. It is only third known object to come from outside our solar system, and astronomers believe it could be one of the oldest comet ever observed, possibly around 3 billion years older than the formation of our solar system. मतलब हम लोग का सोलर सिस्टम कब बना था? 4.6 बिलियन ईयर अगो ना हम लोग सोलर सिस्टम बना था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. मतलब अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. और यूनिवर्स कब बना था? लगभग 14 बिलियन ईयर्स अगो लोग कहते हैं, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से. ठीक. द ऑर्बिटल पाथ ऑफ 3i एटलस इज हाइपरबोलिक, दैट इज एन ओपन ट्रैजेक्टरी, ठीक है, along which is will pass through our solar system, ठीक है, without being bound by the sun's gravity. मतलब sun's gravity में नहीं आएगा. इसे मीन 3i denotes the third interstellar object and Atlas refers to the survey team that discovered it. ठीक है. The first two known interstellar object कौन कौन थे? 1i, ठीक है, अमुनु Oumuamua, ठीक है, Oumuamua, discovered in 2070, a small body था. फिर 2i Borisov, discovered in 2019, a comet था. Its solar relative velocity has been measured at 50 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, which is higher than that of any object ever recorded in the solar system. मतलब इतना फास्ट चल रही है भाई, मतलब यू कांट इमेजिन. मतलब एक सेकंड में 58 किलोमीटर चल रही है. कैन यू इमेजिन? और लाइट का कितना है? लाइट का 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और इस सेकंड में 3×10⁸ मीटर चल रही है. बताइए कितना स्पीड होगा. इसका सोचिए कितना स्पीड होगा. 58 किलोमीटर चल रही है स्पीड भाई, भैया एक सेकंड में इतना फास्ट चल रही है. कॉमेट है, ठीक है, बहुत स्पीड है इसकी. कैसे आ गया? कैसी ग्रेविटी है. द रीजन, मतलब स्पेस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग खुद नहीं पता है, ठीक है. अभी उतना स्पीड में कोई व्हीकल बना दीजिए तो क्या होगा? हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है. द रीजन ऑफ द, मतलब उसको लिए अब हाई एनर्जी चाहिए ना. मतलब कोई भी चीज़ के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए अच्छी, मतलब इसलिए आपको अच्छा फूड चाहिए. कोई कार अच्छा बनाने की स्पीड बनाने के लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए. मतलब आपको एनर्जी हाई चाहिए. आपको एनर्जी कहाँ मिलेगी? आपको बॉडी से मिलेगी. बॉडी कैसे मिलेगी? तो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा हर चीज़. खाना खाने पर से नहीं बॉडी में एनर्जी मिलती है, ठीक है. और भी एक्टिविटी करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, ठीक है. मेंटली आपको फिट रहना पड़ता है, ठीक है. हर चीज़ डिसिप्लिन में होना चाहिए, ठीक है. तो आपकी एनर्जी मिलेगी तो आप पढ़ाई भी अच्छा ज़्यादा करेंगे. कहीं कहीं देखते होंगे जो टॉपर होते हैं बड़ी ज़्यादा पढ़ते हैं. कहीं सुने होंगे ना कि ये कितना पढ़ता है, कैसे पढ़ लेता है भाई? उसका खान पान सही रहता है, एनर्जी हाई रहती है, ठीक है, तब पढ़ लेते हैं. कमज़ोर लोग कहाँ पढ़ पाते? किसी को नींद आता है. क्यों नींद आता है? किसी को खान पान सही नहीं रहता है, ठीक है, नींद इसलिए आता है. ये खान पान अच्छा रखिए, नींद नहीं आएगा, ठीक है ना. पानी ज़्यादा पीजिए, डिसिप्लिन में रहिए. डिसिप्लिन रखिए मतलब अच्छे से टाइम सोइए, टाइम से उठिए, सब कुछ सही रहेगा. आराम से बिंदास यू कैन स्टडी, ठीक है. इसलिए एनर्जी को बनाए रखिए बिंदास. दिस द रीजन ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है, द रीजन ऑफ द गैलेक्सी इट अपीयर, ठीक है, द रीजन ऑफ द गैलेक्सी इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम इज कॉल्ड द थिक डिस्क ऑफ द मिल्की वे, ठीक है. स्टार्स इन द थिक डिस्क आर वेरी ओल्ड, ठीक है, लगभग 7 to 8 बिलियन ईयर्स है. विच इज वाई साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट 3i एटलीस्ट 3 बिलियन ईयर्स ओल्डर देन आवर सोलर सिस्टम. When it passes perihelion, its closer approach to the sun, it will again head back into interstellar space, ठीक है, interstellar space में चला जाएगा and will not be seen near us again, ठीक है. और इसके बाद कभी हमको कभी नहीं दिखाई देगा दोबारा. and will not be seen near us again, मतलब ऐप चला जाएगा भाई, या फिर कभी दिखाई नहीं देगा. यार सोचो, मतलब एक चीज़ जा रही है ऑब्जेक्ट, फिर दोबारा नहीं दिखाई देगी, मतलब मूव करती जाएगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी. कैन यू इमेजिन? और जानते कहाँ तक जाएगी? हमको जितना लगता है वह जाएगी, ठीक है. जाते किसी भी प्लेनेट पे टकरा जाएगी. मतलब हम लोग गैलेक्सी से अलग है ना, हम लोग सोलर सिस्टम से अलग है. तो और भी कोई सोलर सिस्टम है तो वहाँ जाकर हमको लगता टकरा जाएगी. मतलब कि यदि कोई इसके बीच में नहीं आएगा तो चलती जाएगी ना, चलती जाएगी यार, कहीं ना कहीं जरूर टकराएगी. या तो ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी, ठीक है, ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी, या तो किसी ब्लैक होल के अंदर भी तो स्टार रहते हैं. स्टार होंगे तो वहाँ पे टकरा जाएगी, या स्टार में नहीं होंगे तो कोई प्लेनेट में आएगी, वहाँ पे टकरा जाएगी, कहीं ना कहीं जाएगी. इसी तरह ना अर्थ में भी बहुत सारे ये जो आए थे ना, बहुत चीज़ें टकराई हैं भाई, तभी अर्थ ऐसा बनाया है, ठीक है. लोग कहते हैं गोल्ड जो मिलता है ना, अभी गोल्ड कहीं दूसरे प्लेनेट से आया था, टकराया था, इसलिए प्योर फॉर्म मिलता है.
और जो मून था, मून भी शायद टकरा के ही बना था। तो ऐसे कई थ्योरियाँ हैं, सब कुछ पॉसिबिलिटी पे चली, किसी ने देखा नहीं था उस समय ना। तो कई चीज़ें जानते हैं, कई चीज़ें सही भी हो सकती है, कई चीज़ झूठ भी हो सकती हैं। ये कोई 100% सही नहीं कर सकता है, बस पॉसिबिलिटी और गेस पे चल रहा है। बिग बैंग थ्योरी अभी किसी को 100% कोई नहीं कर सकता कि हाँ वो चीज़ आई थी, यहाँ ये कंसिडर किया जाता हाँ वो चीज़ आई थी, बस सिस्टम कार्य कर रहा है, सही है। According to estimates, 3 Atlas will reach yeah, perihelion around 29 to 30 अक्टूबर पहुंचेगा 2025 at distance of 1.4 AU at 210 million किलोमीटर फ्रॉम द सन। As the third interstellar visitor, ठीक है, as the third interstellar visitor, 3 Atlas offers us a rare opportunity, ठीक है, rare opportunity to directly study. As third interstellar visitor, 3 Atlas offers us a rare opportunity to directly study मटेरियल फ्रॉम डिस्टेंट स्टेलर सिस्टम से। और जिससे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ की उसके मटेरियल को चेक कर सकते हैं क्या क्या उसके अंदर है, मतलब कैसे करेंगे यही सब, उसके ऊपर जाकर थोड़ी करेंगे इतना स्पीड में, बस उसको एनालाइज करेंगे, कैप्चर करके उसके डाटा को वहीं से एनालाइज कर लेंगे सेंसर लगा के, ठीक है, सेटेलाइट है ना वहाँ पे, तो उससे उसको डाटा को एनालिसिस कर लेंगे थोड़ा, ठीक। कॉमेट्स, कॉमेट्स आर मेनली क्या होते हैं, स्नोबॉल्स होते हैं, मेड अप ऑफ आइस डस्ट रॉक्स एंड सम अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। देयर न्यूक्लियाई आर मिक्सचर ऑफ फ्रोजन गैस, जो न्यूक्लियाई होते हैं फ्रोजन गैस होती हैं, ठीक है, सच एज वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद सिलिकेट डस्ट एंड मेटालिक पार्टिकल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो स्नोबॉल की तरह होती है, मेड ऑफ आइस डस्ट, कई तरह की उसमें चीज़ें मिक्स रहती हैं, ठीक है, इसलिए देखते हैं जब जैसे ही सन के पास आती है तो वेपराइज हो जाती है, तो साइन करने लगती हैं, ठीक है। टेस्ट ट्रायल्स ऑफ रॉकेट लॉन्च हेल्ड इन यूपी, ठीक, ड्यूरिंग जून 2025 इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रायल्स ऑफ द रॉकेट लॉन्च सिस्टम इन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया था। यहाँ पर देखिए बड़ी अच्छी चीज़ दिया है, कुशीनगर में रॉकेट लॉन्च सिस्टम को यहाँ पर टेस्ट किया था इसरो ने, ठीक, कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में, as part of the preparation for a student competition in model rocketry schedule to be held in October, ठीक है, स्टूडेंट कंपटीशन के लिए, ठीक है, इन मॉडल रॉकेटरी शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2024। की पॉइंट्स क्या है, द लॉन्च ट्रायल्स वर कंडक्टेड बाय द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस एंड Indian Space Research Organization. The model rocket launcher is developed by the Thrust Tech India Private Limited under the guidance of the expert from in space and ISRO. It shall be used for the upcoming in space can state, ठीक है, it shall be used for the upcoming in space can state and model rocketry India student competition 2024-25 to be held in कुशीनगर, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन होगा कुशीनगर में, ठीक गाइस। इसरो का देखना है, इसरो डेवलप्ड 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन, इसरो ने डेवलप किया है 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, फॉर स्पेस एप्लीकेशन के डेवलप किया है इसरो ने। इसरो एंड द सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी एससीएल चंडीगढ़ अचीव्ड ए मेजर माइलस्टोन इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द 2 इंडिजिनसली डेवलप्ड 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर, इसने डेवलप किया चंडीगढ़ ने और इसरो ने, ठीक है। क्या क्या, विक्रम 201 एंड कल्पना 3201 थे, विक्रम साराभाई के नाम पे हमको लगता बना है, और ये कल्पना चावला जो थी इनके नाम पे बनाया थी, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। विक्रम 3201 is the fully indigenously 32-bit microprocessor fabricated in India. It has been manufactured at SCS 180 nanometer CMOS complementary metal oxide semiconductor fab. It is advanced version of the ISRO 60-bit processor. It is advanced version of the ISRO 60-bit processor Vikram 1601, which has been used in launch system since 2009. Vikram 3201 has a special instruction set architecture that supports floating point computation as well as the high level program language ADA. Kalpana 3201 is the 32 risk reduced instruction set computer microprocessor है, ठीक है। अप्रूवल ऑफ चंद्रयान 5 एंड लूपे से भी देखिए इंपॉर्टेंट मिशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी भी आई है, क्योंकि जो कैबिनेट ने इसको पास कर दिया चंद्रयान 5 के लिए, लूपेक्स मिशन के लिए। 3 मार्च 2025 यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ग्रांटेड फाइनेंशियल अप्रूवल फॉर द चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 को लूपेक्स बोलते हैं, चंद्रयान 5 को लूपेक्स, ठीक। दिस मिशन विल बी जॉइंटली
दिस मिशन विल बी जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द इसरो का रहेगा और एंड जक्सा का जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी रहेगा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी रहेगा। फॉलोइंग द लेगेसी ऑफ द चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर बेस्ड लूनर एक्सप्लोरेशन था, और चंद्रयान 3 लैंडर या ऑर्बिटर बेस्ड लूनर एक्सप्लोरेशन, मतलब सक्सेसफुल ऑर्बिट में ही चल रहा है, ठीक है। जो मतलब चंद्रमा के ऑर्बिट में अभी भी काम कर रहा है चंद्रयान 2, याद रखना, ठीक है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर बेस्ड लूनर एक्सप्लोरेशन था, मतलब ऑर्बिट से ही इसको मून को ऑब्जर्व करेगी। और चंद्रयान 3 का था लैंडर रोवर बेस्ड इन सिटू एक्सप्लोरेशन, चंद्रयान 3 का था लैंडर रोवर बेस्ड इन सिटू एक्सप्लोरेशन, ठीक है। लैंडर रोवर बेस्ड इन सिटू एक्सप्लोरेशन था, मतलब वहाँ पे उतर के काम करेगी और सक्सेसफुल भी हुआ था। एंड अपकमिंग चंद्रयान 4 क्या रहेगा, अपकमिंग चंद्रयान 4 क्या रहेगा, इंडिया फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन रहेगा, मतलब यहाँ पे जो है इंडिया का जो है ना यहाँ भेजेगी और वहाँ से सैंपल को रिटर्न करा के लाएगी, ठीक है। वहाँ से चंद्रयान मून से वहाँ से सैंपल जो वापस लाएगी चंद्रयान 4 में। चंद्रयान 5 या लूपेस क्या बोलेंगे इसको, चंद्रयान 5 या लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, ठीक है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन विल बी द फिफ्थ मिशन इन इंडिया चंद्रयान सीरीज। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस मिशन का, लूपेक्स का या चंद्रयान 5 का। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू स्टडी लूनर, वो क्या था ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, ठीक है, is to study lunar volatiles of the region around the permanently shadowed regions near the lunar south pole। मतलब जो साउथ पोल में ना एक परमानेंटली जो है फ्रोजन रीजन है, मतलब परमानेंटली वह डार्क में रहता है, ठीक है, और शैडो रहता है वहाँ पे, जो सन का ना वहाँ पे जो सन का रेज कभी पहुँच नहीं पाता, ठीक है। उसको ये लोग रीड करेंगे, ठीक है, ये लोग रीड करेंगे वहाँ का इन्वायरमेंट का, ठीक है, कि वहाँ पे क्या है इस समय। द मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय द जक्सा, ठीक है, द मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय द जक्सा यूजिंग द ES-324। मतलब वहाँ से कोई वापस आने की बात नहीं हुई, वहाँ पे बस रीड करेंगे, स्टडी करेंगे वहाँ की जो वॉलेटाइल कंडीशन है जो साउथ पोल की, तो वहाँ पे क्या चल रहा है। द मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय द जक्सा यूजिंग द इट्स ES-324 लॉन्च व्हीकल, ठीक है, विच विल कैरी द जापान डेवलप्ड लूनर रोवर, ठीक है, जापान का रोवर है, ठीक है, वहाँ का जापान का रोवर है, इतना याद रखना, क्वेश्चन बनेगा मुझे जितना पता है। जापान डेवलप्ड लूनर रोवर, ठीक है, ये मचाई रहेगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो चलेगी ना वो जापान की, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पर रिसर्च करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी चाहिए ना यार, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, रोवर वहीं का रहेगा, ठीक है, जापान का रहेगा, तो हाई टेक्नोलॉजी तो वहाँ बना देंगे लोग। लेकिन लैंडर जो वहाँ उतारेगी ना वो मतलब वहाँ पे जाएगी व्हीकल में, मतलब व्हीकल में जाएगी, फिर वहाँ ऑर्बिट में जाएगी, तो वहाँ से जो लैंडर रहेगी जहाँ चंद्रमा जो उतरेगी वो इंडिया बनाएगा, ठीक है। बस एक काम खत्म हो गया इंडिया का, ऐसे याद रख लेंगे। इंडिया द लैंडर विल बी डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है, इसरो जो लैंडर डेवलप करेगी और रोवर जो चलेगी ना जापान की चलेगी, ठीक है, क्योंकि जापान पैसा भी ज़्यादा देता है, टेक्नोलॉजी हाई है, तो भाई जापान की चलेगी ना, तो कौन चलेगी, जापान की क्या चलेगी, रोवर चलेगी, और इंडिया जो लैंड करेगा वहाँ पर, ठीक है, लैंडर से ही। अब देखना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द मिशन विल बी प्रोवाइडेड बाय इसरो, जक्सा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा जो है प्रोवाइड करेगा, ऑल फोकसिंग ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड इन सिटू एनालिसिस ऑफ द रीजनल वोलेटाइल इन द लूनर पोलर रीजन, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या चल रहा है सब सपोर्ट करेंगे नासा होगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और वहाँ का जो डाटा रहेगा इनके पास भी जाएगा, ठीक है, ठीक, इंस्ट्रूमेंट सब प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, और वहाँ के सब देखेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे उसको, मतलब सब कोलैबोरेटिवली काम करेंगे ना, सबके लिए हेल्प होगी, क्योंकि डाटा जो भी रहेगी स्पेस की सबके लिए हेल्पफुल है यार। मतलब अब एक ही मिशन मान लीजिए इंडिया ने भेजा है, मान लीजिए उसको लूनर नॉर्थ पोल को स्टडी करने के लिए मान इंडिया भेजा, तो उससे डाटा तो आ ही जाएगी, फिर दूसरा फिर उसी के लिए भेजा तो कोई दिक्कत अच्छी बात नहीं है ना, इससे अच्छा मिल के काम किया जाए, डाटा सेम ही रहेगा ना, डाटा तो डिफरेंट नहीं रहेगी। इसलिए मतलब हमको लगता है ना यार क्या करना चाहिए इन लोगों को, जितनी स्पेस एजेंसी है ना, ठीक है, जितनी स्पेस एजेंसी पूरे वर्ल्ड की, उसका एक अलग से स्पेस एजेंसी बना दी जो कोलैबोरेट करे, सबको कोलैबोरेट करके जितना रिसोर्सेज है ना सबका यूज करके तब एक्सप्लोर करे ना वर्ल्ड का, तब ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, तब वर्ल्ड का पूरा मतलब स्पेस वो करे तब ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। वैसे भी स्पेस एक्स में काम कर ही रही है, प्राइवेट है भाई, पैसे के लिए काम करती है, लेकिन कोलैबोरेटिव काम करेंगे तो ज़्यादा फास्ट होगा काम, और क्या है, रिसोर्सेज बचेंगे और काम फास्ट होगा, वर्क फास्ट होगा। और जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन रहेगा उसका उतना बेनिफिट दिया जाए यार, सही रहेगा, ठीक है। दिस मिशन इज सिग्निफिकेंटली स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज गोल ऑफ, ठीक है, सेंडिंग ए ह्यूमन मिशन टू द मून बाय 2040, मतलब ह्यूमन भी इंडिया भेजेगा वहाँ पे 2040 तक। दिस विल बी इसरोज फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, ठीक है, ये जो है चंद्रयान रहेगा ना, तो क्या रहेगा, लूनर मिशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब 4 में भी यहाँ पे सैंपल लाएगा, 5 में भी सैंपल लाएगा, ठीक है। तो इसमें दिस विल बी इसरोज फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, इट इज प्लान, ठीक है,
इट इज प्लान टू बी लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर 2027। पहले चंद्रयान 4 जाएगा भाई, तो वहाँ से लूनर सैंपल लाएगा, तो उसके बाद 5 जाएगा ना, याद रखना भाई। ठीक, एक्सपेंशन ऑफ द इंडियाज नेविगेशन सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ है, दे दिया इसमें। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द इंडिया नेविगेशन सिस्टम एनवीएस 02, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया नेविगेशन सिस्टम एनवीएस 02। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया नेविगेशन सिस्टम एनवीएस 02। ठीक, एनवीएस 02। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द इंडिया नेविगेशन सिस्टम एनवीएस 02। देखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो मेड हिस्टोरिक विद इट्स 100th लॉन्च बाय सक्सेसफुली डिप्लॉइंग। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, Indian Space Research Organization made history with its 100th launch by the successfully deploying। तो 100th launch था इंडिया का ये। ठीक है, ये इंडिया का 100th launch था। ठीक है, ये पूछ सकता है कि इंडिया का 100th launch था। ठीक है, 100th launch था इंडिया का बाय सक्सेसफुली डिप्लॉइंग द, ठीक है, नेविगेशन एंड पोजिशनिंग। ठीक है, नेविगेशन एंड पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट एमईएस 02 इनटू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। कहाँ पे सेटअप किया, डिप्लॉय किया है, जीटीओ में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में यूजिंग द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी F-15 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, ये हो गया। NVS 02 is the second satellite in the Navik। ठीक है, NVS 02 is the second satellite in the Navik navigation with Indian constellation। ठीक है, NVS 02 is the second satellite in the Navik navigation with Indian constellation। ठीक है, navigation with Indian constellation। ठीक है, ये जो सेकंड सैटेलाइट है इन द नाविक नेविगेशन विद इंडियन। अच्छा, नाविक जो इंडिया खुद का एक जीपीएस सिस्टम है, मतलब नेविगेशन सिस्टम है नाविक, याद रखना। ठीक है, ये पूछा था एग्जाम में भी कि कौन का, किसका जो है खुद का ये नेविगेशन सिस्टम है, तो जापान का था। इसका ये क्या बोलते हैं, यूएसए का है। ठीक है, रसिया का है, चाइना का है। ठीक है, और इंडिया का खुद हो गया, नाविक अब हो गया। ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन constellation। ठीक है, सीरीज नाविक इनिशियली कंसिस्ट ऑफ द 7 सैटेलाइट। ठीक है, नाविक जो है, ठीक, नाविक इनिशियली कंसिस्ट ऑफ द 7 सैटेलाइट। इसके बाद 7 सैटेलाइट है। ठीक है, नाविक जो है इनिशियली कंसिस्ट ऑफ द 7 सैटेलाइट, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसके अंदर एंड 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है एंड 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। ठीक है, तो जीएसओ सैटेलाइट्स बोलते हैं इसको। द फर्स्ट सैटेलाइट IRNSS-1 है। देखिए, द फर्स्ट सैटेलाइट IRNSS-1 ने, ठीक है, वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2030। ठीक है, द फर्स्ट सैटेलाइट IRNSS-1 ने, ठीक है, द फर्स्ट सैटेलाइट IRNSS-1 ने वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2013। ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट IRNSS-1 A was launched in July 2013 by PSLV C-22। ठीक है, द फर्स्ट सैटेलाइट IRNSS-1 A, ठीक है, was launched in July 2013। ठीक है, was launched in July 2013 by PSLV C-22। ठीक है, द फर्स्ट सैटेलाइट IRNSS-1 A, ठीक है, was launched in July 2013 by PSLV C-22। ठीक है, PSLV C-22। ठीक, the first satellite IRNSS-1 A was launched in July 2013। ठीक है, by PSLV C-22 and the 7th satellite IRNSS-1G was launched in April 2016, completing the constellation of 7 satellites. Their coverage extends over the entire Indian region and an area of about 1500 kilometers beyond Indian territory। ये मतलब 1500 किलोमीटर तक यह जाएगी। ठीक है, IRNSS जो नेविगेशन सैटेलाइट है 1500 किलोमीटर तक यह कवर करेगी। ये तो एग्जाम में पूछ लिया था, वहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा था, 5000 किलोमीटर तक कवर करेगी, लेकिन नहीं, 1500 किलोमीटर तक ये कवर करेगी। ठीक, NVS-2 experienced a hardware fault in May 2025 and MVS-02 was partially functional, providing services
इंटरमीडिएटली ग्रुप का सर्विस देती है भाई, ठीक है। स्पाडेक्स मिशन, ठीक है, स्पाडेक्स मिशन, ठीक भाई, स्पाडेक्स मिशन आपको इसको बताना है, बताइए स्पाडेक्स मिशन के बारे में, ठीक है। इंडिया स्पेस मिशन स्पाडेक्स, ठीक है, स्पाडेक्स मिशन के बारे में बताइए। इंडियाज स्पेस मिशन स्पाडेक्स अचीव्ड अ ह्यूज माइलस्टोन, ठीक है, इंडियाज स्पेस मिशन स्पाडेक्स अचीव्ड अ ह्यूज माइलस्टोन, ठीक है, ह्यूज माइलस्टोन, ठीक। इंडियाज स्पेस मिशन, ठीक है, स्पाडेक्स अचीव्ड अ ह्यूज माइलस्टोन व्हेन टू सैटेलाइट ऑफ इसरो, ठीक है। स्पाडेक्स मिशन इंडिया स्पेस मिशन स्पाडेक्स, इसको याद रखना, पूछ सकता है यार। ये इंडिया का है स्पाडेक्स मिशन, जिसका है इंडिया का है, इंडिया स्पेस मिशन स्पाडेक्स अचीव्ड ह्यूज माइलस्टोन इवेंट टू सैटेलाइट ऑफ इसरो डॉक्ड विद ईच अदर, ठीक है, डॉक्ड विद ईच अदर स्पेस में इन आउटर स्पेस ऑन जनवरी 2025 में, मतलब दो सैटेलाइट थी ना वहाँ के इसरो की, वो अटैच हो गई वो स्पाडेक्स के थ्रू, तो उसको डॉक्ड बोलते हैं। अटैच मतलब डॉक्ड होगा, अनडॉक्ड मतलब डिस्पैच होना, ठीक है, मतलब अलग होना, डिसइंटीग्रेट होना। दिस मेड इंडिया पार्ट ऑफ द इलाइट ग्रुप ऑफ नेशन, ठीक है। अभी इंडिया किसका पार्ट बन गया है, यह हेल्प करेगा हर चीज में, ठीक है। दिस मेड इंडिया पार्ट ऑफ द इलाइट ग्रुप ऑफ यूएसए का पार्ट बन गया, रसिया का पार्ट बन गया, चाइना का पार्ट बन गया, मतलब यूएसए रसिया चाइना के बाद इंडिया जो कैपेबल हो गया, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग स्पेस डॉकिंग ऑपरेशन, मतलब ये डॉक कर सकता है, मतलब मर्ज कर सकता है दो सैटेलाइट्स को, ठीक है, अपने टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन एक तरह से कर सकते हैं। अबाउट स्पाडेक्स मिशन क्या बोल रहा है, 2024 में था, लॉन्च हुआ था, कब 2024 में लॉन्च हुआ था। इंडिया स्पेस रिसर्च इसरो ने लॉन्च किया था स्पाडेक्स मिशन, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। जो श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। लॉन्च व्हीकल वही है, सेम होगा PSLV। इसकी हायर कौन है, इससे पावरफुल कौन है, GSLV है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम क्या बदल दिया गया है, LM मार्क 3 बोलते हैं, LMV मार्क 3 बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक। दिस वाज इंडिया लास्ट स्पेस मिशन, ठीक है, इंडिया का लास्ट स्पेस मिशन था, लॉन्च्ड इन द ईयर 2024, ठीक है। दिस वाज इंडिया लास्ट स्पेस मिशन लॉन्च्ड इन द ईयर 2024 स्पेसएक्स, ठीक है। तो फुल फॉर्म स्पेसएक्स क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। क्या है भाई स्पेसएक्स का फुल फॉर्म, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। The indigenous technology used for this mission has been named the Bharti Docking System. The indigenous technology used for this mission has been named the Bharti, ठीक है, has been named the indigenous technology used for this mission has been named Bharti Docking System बोलते हैं इसको। To demonstrate that this complex tasks to satellites, ठीक है, to demonstrate this complex tasks two satellites equipped with the Indian docking system were launched under this mission using PSLV, ठीक है। These satellites have been named, ठीक है, these satellites का नाम क्या दिया गया है, SDX-01 and SDX-02। SDX-01 has been, ठीक है, SDX-01 has been designated as the chaser and SDX-02 as the target, मतलब ये चेस किया था टारगेट को, वहाँ जाकर डॉक हो गया था SDX-2 में। The SpaceX mission aims to develop and test the technology needed for two small spacecraft, ठीक है, SDX-01 chaser and SDX-02 target to approach, dock and undock in a low Earth circular orbit में यह टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट कर रहे थे लोग, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। Additionally, the mission will demonstrate power transfer between the docked spacecraft। एडिशनली क्या किया था, द मिशन विल डेमोस्ट्रेट पावर ट्रांसफर बिटवीन द डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट, द की टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर स्पेस रोबोटिक्स, ठीक है, मतलब स्पेस रोबोटिक्स में मान लीजिए पावर भी मतलब ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। इट विल आल्सो टेस्ट कंबाइंड स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल एंड कैरी आउट पेलोड ऑपरेशन आफ्टर अनडॉकिंग, ठीक है, मतलब ये भी क्या टेस्ट करेंगे, कंबाइंड स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल एंड कैरी आउट द पेलोड स्पेस इस ऑपरेशन आफ्टर अनडॉकिंग में भी ये रिसर्च करेंगे, ठीक है। अब देखना मिशन फायरफ्लाई, देखना इतना कुछ बचा कि नहीं, बहुत बचा यार, मतलब ये अच्छा इतना ही बचा, तो लेट्स फिनिश दिस, ठीक है, लेट्स फिनिश दिस इसी में, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या दिया, मिशन फायरफ्लाई, ठीक है, मिशन फायरफ्लाई की बात हो रही है। क्या बोला, बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक कंपनी पिक्सल लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग HSI सैटेलाइट constellation named
First three satellites out of the constellation of the six were launched aboard SpaceX Transporter 12 mission. First precision flying mission, the hyperspectral imaging analyzes a wide spectrum of light instead of just primary colors. This allows for detailed spectral fingerprint of the Earth, providing more information about what is being imaged here. प्रोवाइड करेगा कितना इमेज हो रहा है, ठीक है, ठीक, इमेज एनालाइज करेगा अर्थ का, ठीक. SpaceX satellite ISRO has accomplished the pivotal operations of the undocking of SpaceX satellite in the very first attempt. ये अनडॉक कभी कर लिया था. The SpaceX satellite was successfully docked. ठीक है. की पॉइंट क्या, अनडॉकिंग ऑफ द सैटेलाइट टुक प्लेस इन 460 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में with 45 degree inclination, ठीक है, with 45 degree inclination. The satellite are now orbiting independently, ठीक है, the satellite are now orbiting independently, ठीक है, ठीक. The satellites are now orbiting independently, orbit करें independently, and their health is normal है. With this, ISRO has now successfully demonstrated all the capability required for ready-Jovis docking and docking operation in a circular orbit. इन सर्कुलर ऑर्बिट में भी डॉकिंग एंड डॉकिंग हो सकती है. इसरो ने प्रूव कर दिया है अपने रिसर्च से, मतलब इंडिया में एक कैपेबिलिटी है. देन नेक्स्ट देखिए पोलरिस डॉन मिशन, ठीक है, फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक, ठीक है, फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक बोले. दिस वाज द फर्स्ट स्पेस वॉक कंडक्टेड बाय द नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट, तो जो कि नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट से, ठीक है, पोलरिस डॉन मिशन था वो. इन चाइनाज सेंजू 19 मिशन कई सूची, ठीक है, एंड सोंग लिंग दोंग स्पेंड मोर देन 9 आवर्स, अ टोटल ऑफ 9 आवर्स एंड 6 मिनट परफॉर्मिंग है स्पेस वॉक, मतलब स्पेस वॉक किया था आउटसाइड है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, मतलब तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बाद उन्होंने स्पेस वॉक किया था, 9 आवर किया था, बताइए. द प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक was held by the American astronaut Susan Helms and Josh Lewis. In March 2001, both astronauts spent 8 hours and 56 minutes in space during their spacewalk. मतलब इसको तोड़ दिया रिकॉर्ड को, अब ये चाइना के पास आ गया इससे रिकॉर्ड. The performance was recorded and transmitted to the Earth via SpaceX Starlink satellite network. ठीक है, ये जो है रिकॉर्ड किया गया और ट्रांसमिटेड टू अर्थ वाया SpaceX Starlink satellite network, जो था ना Starlink, उसके थ्रू भेजा गया है, ठीक है. प्रोबा 3 मिशन देखना, प्रोबा 3 मिशन इन दिसंबर 5, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है. प्रोबा 3 मिशन क्या बोल रहा है, प्रोबा 3 मिशन. ऑन दिसंबर 5, 2024 इसरो लॉन्च्ड यूरोपियन, ठीक है, इसरो लॉन्च्ड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एसए का था, ठीक है, ये इसरो ने लॉन्च किया भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैसे लेकर आजकल लॉन्च कर रहे हैं लोग. इसरो लॉन्च्ड यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसए, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी. प्रोबा 3 मिशन में मार्किंग है सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशन, ठीक है, स्पेस कोलैबोरेशन के थ्रू ये लॉन्च किया प्रोबा 3 मिशन, इसरो ने लॉन्च किया. लॉन्च फ्रॉम फर्स्ट लॉन्च पैड PFLP सतीश धवन स्पेस सेंटर LDSC सार श्रीहरिकोटा से. लॉन्च्ड यूजिंग PSLV XL C-59 व्हीकल. PSLV XL C-15 vehicle carried Proba 3 spacecraft into highly elliptical orbit as a dedicated commercial mission of the New Space India Limited NSIL, ठीक है. Proba 3 spacecraft into highly elliptical orbit as a dedicated commercial mission of the New Space India Limited NSIL. Proba 3 मिशन क्या है, Proba 3 है इन ऑर्बिट demonstration IOD mission of the European Space Agency. The mission goal is to demonstrate precision formation flying, ठीक है, precise formation flying दिखाया था ये इसने, क्या था ये, demonstrate precise formation flying, ठीक है, ये था इसमें. प्रोबा 3 मिशन इज द वर्ल्ड्स, ठीक है, प्रोबा 3 मिशन इज द वर्ल्ड्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, 2 स्पेसक्राफ्ट इसमें रहेंगे, जिसमें इसमें क्या रहेंगे, 2 स्पेसक्राफ्ट रहेंगे, द कोरोनाग्राफी स्पेसक्राफ्ट एंड ऑकुल्टर, ठीक है, ऑकुल्टर स्पेसक्राफ्ट है, मतलब इसका फर्स्ट है जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट रहेंगे. इट वाज लॉन्च्ड टुगेदर इन ए स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, एम क्या टू ऑब्जर्व द सन्स कोरोना थ्रू एन इनोवेटिव सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइट, ठीक है, क्या करना था इसमें, ऑब्जर्व सन्स कोरोना थ्रू एन इनोवेटिव सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइट, ठीक है. लिग्नोसैट का देखना, लिग्नोसैट द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये. लिग्नोसैट क्या है, द वर्ल्ड्स, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ठीक है. The world first wooden satellite was launched into the space on November 22, 2024 में लॉन्च किया गया. An early test of the using
टिम्बर, ठीक है, यूजिंग टिम्बर इन लूनर एंड मार्स एक्सप्लोरेशन, ठीक है, मतलब हल्का रहेगा यार तो मतलब जल्दी पहुंचेगा और क्या। यूजिंग टिम्बर, लकड़ी का बनाया था इसने, ठीक है, लूनर एंड मार्स एक्सप्लोरेशन। इसने मतलब टोक्यो वाले जापान वाले ने बनाया था। लिंगो सेट डेवलप्ड बाय द क्योटो यूनिवर्सिटी जापान ने, एंड होम बिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री, ठीक है, एंड होम बिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री opens new tab will be flown to the international space station, ये ISS पे फ्लो करेगा आना स्पेस एक्स मिशन एंड लेटर रिलीज इनटू द ऑर्बिट अराउंड 400 किलोमीटर अबव द अर्थ। इंडियाज फर्स्ट एनालॉग मिशन, इंडियाज फर्स्ट मार्स एंड मून, ठीक है, एनालॉग मिशन, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग मिशन एट ले इन लद्दाख इज, ठीक है, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट एनालॉग मिशन मतलब सिमुलेट करेंगे वैसे ही कि जैसे मून पे मार्स पे लाइफ है ना, वैसे यहाँ पे सिमुलेट करेंगे लद्दाख में। इंडिया फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग मिशन एट ले एंड लद्दाख टू सिमुलेट लाइफ इन द इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट हैज बीन इनॉग्रेटेड ऑन नवंबर 2024, मतलब सिमुलेट करेंगे लाइफ को, ठीक है, सिमुलेट लाइफ इन इंटरप्लेनेटरी। इंडिया का फर्स्ट एनालॉग मिशन है कहाँ पे, ले लद्दाख में बात करें, ठीक है। एनालॉग मिशन are field tests. Analog missions are field tests conducted in location that resembles extreme space environment. They are crucial for solving problems related to space flight research. India's first Mars and Moon analog mission led by the ISRO in collaboration with the Akka Space Studio, the University of Ladakh, and supported by the Ladakh Autonomous Hill Development Council. ठीक है, मिशन शक्ति सैट, ठीक है, मिशन शक्ति सैट, स्पेस किड इंडिया, ठीक है, स्पेस किड इंडिया SK has formally announced launch of the moon mission under the SHAKTI-SAT mission. It was announced in 2005. It is an all-girls lunar mission involving the design, build, and launch of the satellite into the lunar orbit, showcasing global talent in the space exploration. It plans the participation of 1,200 courageous girls from every corner of the globe, representing 108 diverse nations. It is scheduled for September 2026 to be launched by the ISRO Polar Satellite Launch Vehicle. मतलब वुमेन्स को प्रमोट करेगी ये स्पेस की इंडिया जब लॉन्च की शक्ति सेट, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग 1,200 करेजेस गर्ल लेंगी पूरा वर्ल्ड से ग्लोब से, ठीक, ये के थ्रू लॉन्च करेगा इसरो 2026 में। इसरो का लीड इन मिशन, ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया कोऑर्डिनेटिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड पेलोड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप करेगी पेलोड को भी। स्पेस क्या करेगी, फैसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट। इन स्पेस क्या करती है, फैसिलिटेट करती है ना, ये याद रखना है। इसका कार्य क्या है, इसका इन स्पेस का क्या वर्क है, फैसिलिटेटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट, फैसिलिटेटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन द स्पेस, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर रहा है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर रहा है, ये जो इंडिया बनाने की बात कर रहा है, मतलब देखिए चाइना ने बना लिया भाई, आईएसएस जो बनाया ना, और आईएसएस तो सबका बनाया, ये रस्सियों से ये बनाया, ठीक है, वहाँ पे भी अब देखिए चाइना ने अपना अलग से बना लिया, वहाँ पे अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उससे जो आईएसएस है ना उससे छोटा ही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से, सकता है लगाऊंगा, मतलब पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं है। The Union Cabinet chaired by the Prime Minister has approved the building of the first unit of the Bharatiya Antariksh Station by extending the scope of the Gaganyaan program. Approved by the Cabinet is given for the development of the first module of the Bharatiya Antariksh Station BAS-1. क्या बोलेंगे BAS को, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बोलेंगे, ठीक है, BAS-1 and undertake mission to demonstrate, ठीक है, and undertake mission, ठीक है, and undertake to mission to demonstrate and validate various technology, ठीक है, to demonstrate and undertake mission to demonstrate and validate various technologies for building and operating BAS, ठीक है। Now the human space flight program of technology development and demonstration is through 8 mission, ठीक है। Now the human space flight program of technology development and demonstration is through 8 missions to be completed by December 2028 by launching first unit of BS, मतलब दिसंबर 2028 तक ना फर्स्ट यूनिट लॉन्च करने की बात बोल रहे हैं। दिस विजन फॉर स्पेस इन द अमृत काल इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग अदर थिंग क्रिएटिंग ऑफ ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035, मतलब 2035 तक ना ये लोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इंडियन क्रूड लूनर मिशन बाय 2040, ठीक है, और मतलब ह्यूमन मेड वहाँ पे जाएगा, ठीक है, ह्यूमन मिशन जाएगा लूनर पे, मतलब चंद्रमा पे जाएगा ह्यूमन क्रूड, मतलब इंडियन क्रूड लूनर मिशन बाय 2040।
मतलब ह्यूमन जो है जाएगा मून पे 2040 तक, और 2035 तक क्या होगा, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बन जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यही है। To achieve this, ISRO will undertake 4 missions under ongoing Gaganyaan program by 2026, and development of the first module of the BES, and 4 missions for demonstration and validation of the various technology for BES by December 2028. With a net, ठीक है, with a net additional funding, ठीक है, with a net additional funding of 11,117 crore in the already approved program, ठीक है. The total funding for Gaganyaan program with the revised scope has been enhanced, ठीक है. वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM, ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM क्या है देखना, वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM. The Union Cabinet chair by the Prime Minister Narendra Modi has approved the development of the Venus orbiter mission, ठीक है, Venus orbiter mission, ठीक है, approved the development of the Venus orbiter mission, ठीक है, Venus orbiter mission इसने अप्रूव कर दिया है, ठीक है. ये देखना VOM बोलते हैं इसको. द मिशंस प्राइमरी गोल इज टू कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ वीनस, आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन. ये वीनस है ना, अर्थ, ये जितना साइज अर्थ का ना उतना ही वीनस का है, ठीक है, इस पे ध्यान रखना. द वीनस ऑर्बिटर मिशन इज टू बी accomplished by डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वेरिटास बोलते हैं. वेरिटास भी नासा का मिशन है, ये भी वीनस से रिलेटेड है, ठीक है. वेरिटास इज नासा नेक्स्ट मिशन टू वीनस, ठीक है, प्लैनेट एंड इज सेट टू लॉन्च इन नो अर्लियर देन 2030, मतलब 2031 के बाद ही है लॉन्च होगी. दिस मिशन विल यूज रडार इमेजिंग टू मैप द सरफेस ऑफ वीनस एंड स्टडी इट्स जियोलॉजी. ये क्या करेगी, यूज रडार इमेजिंग टू मैप द सरफेस ऑफ वीनस एंड स्टडी इट्स जियोलॉजी, स्टडी करेगी, ठीक. द वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, द वीनस VOM, ठीक है, VOM मतलब वीनस ऑर्बिटर मिशन क्या करेगी देखना. इज इनविसेज टू ऑर्बिट अ साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, इज इनविसेज टू ऑर्बिट अ साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, इज इनविसेज टू ऑर्बिट अ साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट इन द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट विजन, ठीक है, इन द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट विजन, ठीक है, is envisaged to orbit a scientific spacecraft in the orbit of planet Venus for better understanding of the Venusian surface and subsurface atmospheric process and influence of suns on Venusian atmosphere. मतलब जो वीनस का सरफेस रहेगी उसको चेक करेगी ऊपर से ही, ठीक है, उसका ऑर्बिट में ही रहेगी, मतलब उसको उतरेगी नहीं, उसका ऑर्बिट पे रहेगी, क्योंकि वो बहुत हीटेड है यार, उसका अर्थ ना बहुत हीटेड है, उसके ऊपर इतना मतलब वो सॉलिड फॉर्म में ही है, वीनस सॉलिड फॉर्म में ही है, लेकिन वहाँ बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहे हैं अभी भी, ठीक है ना. और वहाँ पे जो थिक क्लाउड है ना वो स्केप कर नहीं देते, जो लाइट है गैसेज है स्केप नहीं होती, तो उससे जो है ग्लोबल हीट वार्मिंग वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाती है, बहुत हीट कर देती है पूरा, इसलिए वहाँ पे अभी तो नहीं लेकिन बाद में उतार सकते हैं लोग, ठीक है, नासा उतारने की बात बोल रहा है, ठीक है, ठीक. ISRO will responsible for the development of the spacecraft and its launch. डेवलप करेगी स्पेसक्राफ्ट को एंड इट्स लॉन्च फॉर हिम. द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट ऑन द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ड्यूरिंग मार्च 2028 तक. ये बोल रहे हैं कि ये लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मार्च 2028 कंप्लीट करने के बाद बोल रहे हैं लोग. याद रखना इसको, याद रखना. एक क्या भाई साहब आ गए हैं यहाँ पे. द टोटल फंड अप्रूव फॉर द वीनस ऑर्बिटर मिशन इज कितना है, 1236 करोड़, और अभी 824 करोड़ विल बी स्पेंड ऑन स्पेसक्राफ्ट. मतलब स्पेसक्राफ्ट ज़्यादा उस पर खर्च होगा, ठीक है, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उस पर कम रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक, ये भी अब लॉन्च करेगी इंडिया, मतलब एडवांस कर रही है ना इंडिया थोड़ा. नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. The Union Cabinet chaired by the Modi ji, ठीक है, has approved the development of the next generation launch vehicle, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना यार. This will be a significant step toward the government's vision of establishing and operating the Bharatiya Antariksha Station and toward developing capability for Indian crewed landing on the moon by 2014. NGLV, ठीक है, next generation of the satellite launch vehicle, ठीक है, next generation of the satellite launch vehicle, ठीक है, will have 3 times the present payload, capability with 1.5 times the cost compared to, मतलब ये इस कितना पावरफुल रहेगी, 3 टाइम्स रहेगी इसका पावर, ठीक है, हैव टाइम्स द प्रेजेंट पेलोड कैपेबिलिटी विद 1.5 टाइम्स द कॉस्ट कंपेयर टू LMVM3. मतलब इसका कॉस्ट भी 1.5 रहेगा, जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ना, मतलब जो GSLV है उसका 1.5 टाइम्स कॉस्ट लगेगा, और उससे भी ज़्यादा 3 टाइम जो है इसका पेलोड उठा पाएगी है. NGLV will be capable of placing payloads of up to 30 tons into low Earth orbit में 30 टन जो है प्लेस कर पाएगी, ठीक है,
ये भी ध्यान रखना भाई। एडिशनली द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस रॉकेट विल बी रीयूजेबल होता है, ठीक है, इसको रीयूज कर सकते हैं जब फर्स्ट स्टेज होगा। इट इज़ नोटवर्दी दैट द प्रेजेंट, इट इज़ नोटवर्दी दैट इंडिया at present India has achieved self-reliance in developing launch vehicle capable of placing satellite up to 10 tons into low earth orbit। मतलब इंडिया जो 10 टन तक का तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है, इतना टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास। इंडिया इज आल्सो कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट वेइंग अप टू 4 टन इनटू द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। मतलब 4 टन तक का जो है सैटेलाइट कहाँ पे कर सकते, कहाँ प्लेस कर सकते हैं, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर सकती है, ठीक है। It will also have reusability, ठीक है, it will also have reusability resulting in low cost access, ठीक है, it will also have reusability resulting in low cost access to space and modular green propulsion system, ठीक है, and modular green propulsion system, ठीक है। NG will be designed to have maximum payload capability of 30 ton to low earth orbit which is also have a reusable फर्स्ट ये बोलान बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ना, ये मैक्सिमम पेलोड कितनी रहेगी, 30 टन रहेगी एंड लोअर ऑर्बिट में ये इसका रीयूज फर्स्ट स्टेज रहेगा, ये जो रहेगा रीयूजेबल रहेगा, ठीक है ना। पोलरिस डॉन मिशन, ठीक है, पोलरिस डॉन मिशन याद रखना। पोलरिस डॉन मिशन वाज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम नासाज कैनेडी, ठीक है। ये पोलरिस डॉन मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ है, कहाँ से लॉन्च हुआ भाई, फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ, ठीक है, फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ है। द मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द स्पेसएक्स, ठीक है, द मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द स्पेसएक्स यूजिंग फाल्कन 9 रॉकेट। द मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द स्पेसएक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। द मिशन वाज लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स यूजिंग फाल्कन 9 रडार एंड ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट एंड ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। क्रू क्या है, 4 मेंबर सिविलियन क्रू वाज सेंट इनटू द स्पेस एज पार्ट ऑफ दिस मिशन। द क्रू मेंबर्स वर कौन कौन थे, जेड आइजक मैन थे, मिशन कमांडर थे, एंड सैकुड पोटेट थे, सारा गिलिस थे, ठीक है, अन्ना मेनन थे। जरा जेड आइजक मैन इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द, ठीक है, जरा आइजक मैन, ठीक है, आइजक मैन इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द शिफ्ट फॉर पेमेंट्स इंक, यूएस बेस्ड कंपनी। द मिशन लास्टेड अप्रॉक्सिमेटली 5 days, ठीक है, 5 days with the crew orbiting Earth before returning safely on the September 15, 2024. During this mission astronauts completed the first ever commercial spacewalk। मतलब कमर्शियल स्पेसवॉक ये लोग किए थे यहाँ पे, ठीक है। क्लियरली दिस वाज द फर्स्ट स्पेसवॉक कैरिड आउट बाय द नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट। ये सब नॉन प्रोफेशनल थे, इन्होंने स्पेसवॉक फर्स्ट स्पेसवॉक भी किया था यार, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्पेसवॉक किया था यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल से। व्हाइल फ्लाइंग ऑन दिस मिशन द एस्ट्रोनॉट्स आल्सो अचीव द हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट एवर फ्लोन। हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट पे ये गए थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। Astronauts also achieved the highest Earth orbit ever flown, ठीक है, the highest Earth orbit पे लोग गए थे भाई, मतलब गजब लोग गए थे, ठीक है, उसका ध्यान रखना। अब हम लोग किस पे आ गए यार, न्यू टॉपिक पे हम लोग आ गए फाइनली, ठीक ना, न्यू टॉपिक पे हम लोग आ गए भाई, ठीक। रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खत्म करके रहेंगे, डोंट वरी, इसको हम लोग खत्म करके रहेंगे। तो चलते हैं गाइस, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट, ठीक है, एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप व्हिच आई हैव पुट इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट, ठीक है। यू कैन ज्वाइन इट इजीली। So if you have any doubt, you are free to ask, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।